नमस्कार दर्शक मित्रों। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थिंक लाइन के नए संस्करण में आपका स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम ऑन थिंक लाइन टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ अवर नेबरिंग स्टेट, अवर नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के क्या हालात है टुडे, आज के दिन में, और कहां पर जा रहे हैं। हमने पिछले 7-10 दिनों में, इन लास्ट 7-10 days, we have seen lot of things happening in Pakistan. In 75 years, what Indian Army could not do, वो सब चीजें पिछले 10-15 दिन में पाकिस्तान में देखने को मिली। पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर के घर पे पब्लिक उमड़ पड़ी हो, वहां लूटपाट की गई हो, ऐसे दृश्य हमारे सामने आए। पाकिस्तान के एक विपक्षी नेता इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, बाद में रिहा भी किया गया। He was released again, and then the Chief Justice called him like a royal guest, treated him like a royal guest when he came down to the Supreme Court of Pakistan. ये सब चीजें जो पाकिस्तान में हो रही है, आर्मी का शासन पहली मर्तबा 75 सालों में, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है इंडिया की तरह, भारत की तरह, तब से उसके हालात बैड टू वर्स, जिसे आप कहें ना, बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। तो क्या इसमें इंडिया को कोई तकलीफें होने वाली है? हाँ, वो बात सही है। कुछ लोग ऐसे बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अब के बारे एक नहीं 4 टुकड़े होंगे। तो क्या ये सब सही है? वेदर इट इज ट्रू? टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान हाजिर है कि जो मेहमान शायद गुजरात में, सूरत जैसे शहर में एक होंगे जिन्होंने पाकिस्तान का एक नहीं 2-2 बार दौरा किया है। वाजपेयी जी ने जब अमन की आशा जगाई थी, तब भी वो वहां थे, उसके बाद भी वो वहां थे। वो यूएन में अपना परचम लहरा चुके हैं। He has been on the UN panels on international discussions, on international affairs, especially the Indian subcontinent. So we are going to talk to Mr. Siddharth Shah, who is a local person, all right, but at the same time, he talks a lot on foreign policy. आज हम वही विदेश नीति के ऊपर बात करने वाले हैं। सिद्धार्थ जी, आपका हमारे छोटे से चैनल पर आज के संस्करण में खूब खूब स्वागत है। नमस्ते सभी दर्शकों को। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। Yes. Sir, when we start talking, what do you see, what do you make of the present state of Pakistan? आज के दिन में रोज 2-2 खबरें निकलती है, ऐसी बड़ी खबरें निकलती है जैसे अभी ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। In one simple line, if I were to describe the current situation in Pakistan, I would say over the past 7-8 decades or so, ever since the inception of the idea of Pakistan, which by the way was held in London. So for the first time, the idea of Pakistan got nurtured, got germinated in London. So over the past 7 decades or so, Pakistan has been radicalized, more so after Zulfikar Ali Bhutto's assassination and when General Ziaul Haq came to power. उसके बाद all of a sudden पाकिस्तान का वहाबाइजेशन हो गया, radicalization हो गया. So currently पाकिस्तान का जो state है, I would call it a radicalized Pakistan, which is a hungry Pakistan, and पिछले 10-15 दिनों में जो हमने देखा that it's an angry Pakistan. So it's a very deadly combination, which I would say, wherein you are absolutely radicalized. Society is radicalized, society is hungry, and now to top it all, they are angry. So it's a very bad situation that Pakistan is in currently. But sir, when you say radicalized, hungry and angry society, अभी ये तीनों का बहुत खतरनाक मिक्सचर होता है। देश जाता है, सिविल वॉर की तरफ चला जाता है। एक तरफ देखिए, हम एक ही साथ में पैदा हुए थे, भारत तो लोकशाही के दायरों पे चला, आज उसकी प्रगति एक तरफ है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान इकोनॉमी इज गोइंग फ्रॉम वर्स्ट to, if you can describe any other things, yeah. I would
If it is okay to disagree on your channel with your statement, एक ही साथ पैदा नहीं हुए थे। भारत भूमि जो है, we have evolved, we have come over thousands and thousands of years, millennia and millennia of period. So Pakistan was carved out, or Pakistan got extracted from the Akhand Bharat in 1947. But having said that, every country has a chiti of its own. Every country has a swabhav, a consciousness of its own. And if you look at, and this is very interesting, when India was created, I'm using the word India, Bharat is अखंड भारत। on this. Yes, it's Bharat Sanatan hai. Bharat sadiyon se chala aa raha hai. Bharat Sanatan hai. Apitu, India was created, let's say, 1947. So, of all the countries that were that came into existence in the Bharat Bhukhand, Indian subcontinent, be it Pakistan, be it Sri Lanka, be it Bangladesh, they have 1971 Bangladesh was created. So they have had their playoffs with democracy. There were coups in Bangladesh. There were attempted, creation of democracy being, in turbulence in Sri Lanka. And पाकिस्तान का तो केस ही रहा है कि जहां पे not even a single prime minister or person has fully completed his office. आज तक, अभी तक एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है जिसने अपनी ऑफिस पूरी फिनिश की हो 5 साल की। सो ये उनका एक पूरा एक कालखंड रहा है। So coming back to the chiti, the swabhav of the nation, we as a nation, I would say, are a nation wherein, if I create an analogy, wherein we worship Raja Ram, we worship Prabhu Ram. And why I'm giving this analogy is because when we talk about the power struggle, when we talk about the power structures, there is a very interesting history of ours wherein Prabhu Sri Ram's younger brother, Shatrughna, waited for him for 14 years, and all the 4 brothers, they represented various forms of काम, धर्म, अर्थ एंड मोक्ष, जिसमें हमेशा कहा गया है कि जो शत्रुघ्न है वो मोक्ष के द्योतक हैं, प्रभु श्री राम जो हैं वो धर्म के द्योतक हैं, लक्ष्मण काम और शत्रुघ्न भरत जो है वो अर्थ के द्योतक हैं। On the other side, when we talk about Pakistan, Aurangzeb and his example, who killed his brothers, right, to come to power. So these are 2 different civilizational aspects that we are talking about, and that is the reason why democracy has always not only been preserved, but it has flourished. It has, despite so much of variations that we have, despite so much of uniqueness that we have as a nation. We speak different languages. We have different festivals. But what is one thing that unite someone sitting in Assam to someone in Gujarat, or someone in Jammu to someone in Kanyakumari, and that is Omkar. So it is Omkar which unites all of us. It is, the belief in a common ancestry, or Mahabharata, Ramayana, or the concepts, or the Prabhu Shri Ram पे आस्था, ये हम सबको जोड़े हुए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, जिसको मैं अक्सर ईशान प्रदेश के नाम से उल्लेखित करता हूं, उन सब की भाषाएं अलग हैं, उन सबके खान पान अलग हैं, उन सबके फेस्टिवल्स अलग हैं, उन सबके रिचुअल्स अलग अलग हैं। साउथ सेम ऐसा ही है, बट क्या है जो हम सब में कॉमन है? व्हाट इज द कॉमन डिनोमिनेटर जो हम सबको जोड़े हुए है? वो ये ओमकार है। Unlike this, what has happened in Pakistan over a period of time, जो मैंने बताया कि उनका जो culture है, which is based on fratricidal, occupation of power, एक भाई दूसरे भाई को मारता है, पिता पुत्रों को मारता है, पुत्र पिता को मारता है और गद्दी पे आता है। तो ये इनकी एक परंपरा रही है। और वी ऑलवेज से दैट, एज आई सेड, हर राष्ट्र की एक चिति होती है। भारत की चिति क्या है? भारत की चिति ज्ञान अर्जन है। भा, एज द नेम सजेस्ट, जो रूट वर्ड है, रूट धातु है, वो है लाइट।
जैसे हम भास्कर कहते हैं, जैसे हम प्रभात कहते हैं। सो वी आर द सीकर्स ऑफ नॉलेज। हमने हमेशा से ज्ञान अर्जन की ही बात की है। और इसीलिए अगर आप देखते हैं, जब मैं पाकिस्तान गया था 2004-2005 में, और अभी आपने मुझे इकोनॉमिक्स की बात की, तो एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि उस जमाने में मेरे पास एक ऑटोमेटिक कैमरा था जो पेंसिल सेल से चलता था। तो वो पेंसिल सेल्स खत्म हो गए, और लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम है। फोर्ट्रेस स्टेडियम के इट्स अ वेरी, ये कैंटोनमेंट एरिया में आता है, और पॉश इलाका है। वहां पे एक शॉप में गए और मैंने कहा मुझे पेंसिल सेल्स चाहिए। तो उन्होंने कहा कौन से दें? मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा जर्मन दें या जापानी दें? मैंने कहा क्यों, पाकिस्तान में पेंसिल सेल्स नहीं बनते हैं क्या? एंड इंटरेस्टिंगली माय होस्ट वाज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी, ही सेड हाँ यही हाल है पाकिस्तान का, हमारे यहाँ पेंसिल सेल ना बने, लेकिन हम एटम बम जरूर बना लेते हैं। So हम्म। we all know they have had the atom bomb or the nuclear bomb. With respect to, everyone knows about AQ Khan and his clandestine involvement vis-a-vis China through the North Korea. So yes, the financial situation economically it is in shambles. और ये कई लोगों ने कहा है कि ये पाकिस्तान के ही कमेंटेटर्स, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने कहा है कि आज जब दो मुल्क आजाद हुए, when दो राष्ट्र बने, और उस समय अगर सभी मुसलमान पाकिस्तान आ गए होते, तो आज पाकिस्तान की स्थिति सीरिया या अफगानिस्तान से भी बदतर होती। और उस परिस्थिति में जब सारे मुसलमान पाकिस्तान में आ गए हैं, एंड इंडिया इज डिवॉइड ऑफ Muslims and it is all other सनातनीज that they are living, तो भारत की स्थिति आज एक अमेरिकन देश या फिर सिंगापुर से भी बेहतर होती। तो ये एक पाकिस्तानी कमेंटेटर का, पॉलिटिकल कमेंटेटर ने ही ये बात कही है। तो बात यहाँ पे जब मैं इकोनॉमिक्स ही कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वेदर इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसी ने कहा है कि पाकिस्तान क्या करता है, तो वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है। Yes, और I'll come to हिलेरी that. क्लिंटन ने, I'll come to that. I'll come यस to यस, that point. और I'll just mention Hillary Clinton's comment when Yes. she said that if you if you if you breed snakes in your backyard, and if you want that these snakes would only kind of Bite you. bite your neighbors, that's not possible. Yes. इनका कहना ये था सिद्धार्थ जी का कि अगर आप सांप को पालोगे तो ये मत सोचना कि सांप बाजू वाले को ही कर देगा, डसेगा। वो आपको भी डस सकता है। और वही चीज एग्जैक्टली पाकिस्तान में आज हो रही है। हम देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व आज ऐसी ऐसी जगह पे आके खड़ा है, 4 बिलियन डॉलर मैक्सिमम। वर्ल्ड मॉनेटरी फंड उनको हेल्प नहीं कर रहा है। इंडिया ने एक तरफ एक बीड़ा पकड़ा है कि बिना जंग किए हम इनको खत्म कर देंगे। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात हो रही है। एक तरफ इंडिया का एक्सपोर्ट 770 बिलियन से ज्यादा हो गया है, एंड वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन कपल ऑफ इयर्स if the figures prove right. Today we are the fifth largest. But then with the 3.8 trillion economy, we are in a position to help out a lot of neighbors. But India has chosen not to help Pakistan. In such a situation, if Pakistan really disintegrates or start disintegrating, अगर टूटना शुरू हो जाएगा, एक सिविल वॉर जैसा हालत वहां पर पैदा हो जाएगा, तो क्या होगा? एक तरफ एक लीडर ने आके पाकिस्तानी आवाम को जगा दिया है। दे आर ऑन द रोड्स टुडे, आज रोड्स के ऊपर है। वो क्रेडिट तो हमें वो इमरान खान को देनी पड़ेगी। हमें पसंद हो ना पसंद हो बात अलग है, मगर मित्रों जो 75 साल में इंडियन आर्मी ने कभी नहीं किया, बिकॉज वी हैव अ पॉलिसी दैट वी डू नॉट गो ऑन एनीवन एल्स लैंड, जबकि एनक्रोचमेंट हम लोग नहीं करते। और उसी की वजह है शायद कि टेररिज्म पाकिस्तान से जुड़े इलाकों में बहुत सालों तक पनपता रहा, बिकॉज इट वॉज दैट अपीसमेंट पॉलिसी। मगर अभी चीजें बदल चुकी है। एक इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करते हुए आप इसको किस तरह देख रहे हैं, और आप क्या नजदीक के फ्यूचर में नजदीक के भविष्य में डू यू फोरसी समथिंग ड्रास्टिक हैपनिंग इन पाकिस्तान?
Because when they produce nothing, they have no money. And whatever money, whatever little money comes, it's that 1 or 2% of the elite of the army that eats that one off. People are still going hungry. 20 किलो की एक पूरी Um, का 3,000 रुपया देना पड़ता है, डॉलर 300 के पार हो गया है। ये सब चीजों में क्या पाकिस्तान के हालात जो आपके थे वो क्या दिखते हैं आगे आगे के महीनों में सर? Himanshu bhai, in the beginning of the show and now before I started speaking, you referred this twice that जो काम भारतीय सेना पिछले हाँ 75 years में न कर सकी, वो काम शायद अभी वहाँ की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन या हालात वहां पे ऐसे पैदा हो गए हैं। तो आई वुड बेग टू डिफर ओवर हियर बिकॉज पाकिस्तान इंडियन आर्मी और भारतीय सेना ने शायद वो नहीं किया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल विल जो था वो नहीं था। नहीं था। इन पिछले 7 दशकों में इस बात का एक पॉलिटिकल विल नहीं था, बल्कि भारतीय सेना का जो दमखम है, भारतीय सेना का जो विल पावर है, भारतीय सेना ऐसी सेना है कि जिसने विकट परिस्थिति में भी 1962 का जो वॉर था, विषम परिस्थितियों में भी हम डटे रहे। और सो कुडोस टू भारतीय सेना, जय हिंद की सेना। नहीं वो तो तो बराबर है सर, विद दैट दिस, आई हाँ, आई फुल्ली तो अंडरस्टैंड, तो दैट अपीसमेंट पॉलिटिक्स आई एम इट रिफरिंग टू। यस सो दैट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ जो पॉलिटिकल विल चाहिए था वो अब तक नहीं था। दैट इज नंबर वन। नंबर टू कि ये नहीं कहूंगा कि भारत किसी तरह से पाकिस्तान को मदद नहीं कर रहा है। देखिए, भारत ऐसा देश है कि टर्की जब वहां पे अर्थक्वेक आया, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट एर्दोगान, करंट लीडर ऑफ टर्की, who has been spewing venom यस on Bharat, on especially on Kashmir issue, whether it is इवन जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में, तभी भी रिजब तैयब एर्दोगान, जो कि टर्की के लीडर हैं, उन्होंने बहुत जहर उगला भारत के बारे में। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद जब अर्थक्वेक आया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, भारत ने पूरी तरह से मदद की है। भारत ने पूरी तरह से टर्की के लोगों के साथ खड़े होकर उनकी सहायता की है। यस तो ये कहना कि भारत की ये नीति रही है, ये गलत होगा। दूसरी बात कि इस केस में पाकिस्तान ने खुद ने ही स्वयं ही अपने आप को अकेला और एक तरह से मैं कहूंगा कि डिप्लोमेटिकली पराया कर दिया है। सो ये चीज क्यों हुई है? क्योंकि आई थिंक द करंट लीडरशिप इन भारत इज वेरी क्लियर दैट वी कैनॉट हैव टॉक्स एंड टेररिज्म टुगेदर। तो इवन द रीसेंट एससीओ मीट में भी our wonderful external affairs minister एस जयशंकर जी ने खुले शब्दों में क्लियर उससे बिलावल भुट्टो जी को बता दिया था। बिलावल भुट्टो जो उनके सामने एक स्टूडेंट से भी एक बौने कद के दिख रहे थे, शारीरिक स्वरूप में वो एकदम विशाल काय हैं, बट when it comes to the diplomatic nitty-gritties, he was absolute dwarf in front of the gigantic image persona of our beloved एस जयशंकर जी। तो वहां पे भी उन्होंने बहुत ही दो टुक शब्दों में कहा है कि टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर एंड विल नॉट गो टुगेदर। ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवाद फैलाते रहें, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी धरती से टेररिज्म फैलाते रहें। कश्मीर में जो हालात बद से बदतर हुए थे आज से 8-9 साल पहले, अभी भी प्रयास उनका जारी है। और हम यहाँ पे आपके साथ पपिया जपिया वाला जो माहौल है वो भी चलता रहे। आपके कलाकार आए यहाँ पे, कमाएं यहाँ पे, सब शोहरत हासिल करें, और वहां जाके फिर भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, ये अब स्वीकार्य नहीं होगा। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्टर्न स्टेप बाय अ स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग नेशन। सो वी आर अ नेशन जो अभी हमारी लीडरशिप ने ये बताया है, ये मेरे ख्याल से हर एक भारतीय, चाहे वो भारत में रह रहा हो या विदेश में हो, तो उसके लिए एक गर्व और उसका एक सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है जब वो देखता है कि नाउ वी आर सेटिंग आवर एजेंडाज विद अ कन्विक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, not on the basis of our weakness.
हम अपनी टर्म्स खुद सेट कर रहे हैं और किस बात पे, अपनी स्ट्रेंथ पे। हमारी, जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो एक डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात वो हमेशा बताते हैं, डेवलपमेंट की बात बताते हैं। तो ये जो 3D जो उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया है, शॉर्ट 3Ds की बात बताई है, दैट्स द कोर स्ट्रेंथ ऑफ भारत। और इस स्ट्रेंथ को लेवरेज करने का काम आई थिंक अगेन एक पॉलिटिकल लीडर को आना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ही इज ऑन अ विजिट टू पैसिफिक यस, नेशंस, पैसिफिक नेशंस। और कल जैसे हमने देखा कि पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसा शायद डिप्लोमेटिक इतिहास में प्रथम बार हुआ कि किसी कंट्री, किसी देश के प्रधानमंत्री ने, नेता ने भारत के प्रधानमंत्री को चरण स्पर्श करके नमन किया है। तो एक स्टेट्समैन, ट्रू स्टेट्समैन की एक इमेज जो उद्भव हो रही है, जो उभर रही है, वो एक नरेंद्र मोदी की नहीं है, वो सभी 145 प्लस 145 करोड़ जो भारतीय हैं, उन सब की इमेज है। तो इस बात का हमें सबको गर्व होना चाहिए, इस बात का हमें सबको एक, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो ये अभी एक बदलता भारत है कि जिसमें हम अपने डिप्लोमेटिक स्टेटस में एक वी वॉक ऑन आवर स्ट्रेंथ रादर देन ऑन आवर वीकनेस। सो इस डिप्लोमेटिक भारत सर, आई इंटरप्ट यू हियर। डिप्लोमेटिक श्योर। भारत, भारत की डिप्लोमेसी बहुत पहले से, आप देखिए तो 70-80 के दशक में, फिर 90 के दशक में भी, 60 साल तक जो एक राष्ट्रीय पार्टी ने, कांग्रेस ने, जिसने भारत पे राज किया, तो भारत की डिप्लोमेसी हमेशा पैसिव डिप्लोमेसी विथ अपीसमेंट रही। अभी वेरी पिछले ट्रू, नौ वेरी दस ट्रू। सालों में वी आर प्रोएक्टिव एंड अग्रेसिव डिप्लोमेसी। नाउ इज दिस द वे टू गो फॉरवर्ड? एंड विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान, मैं आपको बता दूं, आपने पापुआ न्यू गिनी की बात की, उससे पहले G7 में बड़ा प्रधान ने, हमारे नरेंद्र भाई ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी सीधी सी बात कही, दो टूक बात कही, वही जो जयशंकर पहले से बोले थे कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। एज फार एज पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम तो दिया नहीं उन्होंने, वो कभी देते नहीं है, हम्म, हम्म, मगर उन्होंने उन्हीं ने एक स्पीच में वो भी कहा था कि हम पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल देंगे। A हम्म, very significant statement. There was one statement which created a lot of fear into the Pakistani media. We will diplomatically isolate you. It was a statement some years, a year or two back, which he uttered in हम्म, one of the election rallies. हम्म, But that is proving correct today. So we एब्सोल्युटली। understand one thing, that Indian diplomacy today is very strong, that it can affect the world opinion. And with respect to Pakistan, if it starts disintegrating, what will be the problems that India will have? No, I'll go back to your initial statement. Yes, it's a changed diplomacy that we are witnessing. Uh, More so when it comes to आइसोलेटिंग पाकिस्तान, एंड आई थिंक इसकी शुरुआत हो चुकी थी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, सार्क में भारत जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, जो सार्क देशों का समूह है। और उसमें अगर मैं पॉलिटिकली थोड़े से ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, तो भारत पाकिस्तान की बदतमीजियों को स्वीकार नहीं कर सकता था, बट till we tolerated all the nonsenses that was done by Pakistan. So much so, मैं एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सार्क लेवल का एक परिसंवाद था, एंड आई गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट भारत। इट वाज बेसिकली ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज एंड रेफ्यूजी लॉज। तो उसमें आप Okay. समझ सकते हैं सार्क सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और जब डिस्कशन चल रहा था, एंड सभी देश, ये शायद पहले की बात है, लेट इट नॉट कंस्ट्रू ऑन द करंट सिचुएशन, अभी के हालात हमारे उस देश के साथ अलग हैं। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको पहले की। तो हाँ, 2006 की ये बात है, 2006 या 7 का ये वाकया है। तो सार्क, जैसे दर्शकों को पता होगा कि भारत भूखंड के चारों ओर जितने भी देश हैं, उन सबका समूह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो Yes. हम सब देशों के अलग अलग लोग थे, और दे वर डिस्कसिंग
their issues with India. Obviously, Pakistan has long standing list, बांग्लादेश की भी कुछ बातें थी, तो वो सब बता रहे थे. And imagine a small country like Maldives, और उस समय तो उसकी पॉपुलेशन वाज ओनली 5 लाख पॉपुलेशन, 5 या 6 लाख उस पूरे देश की पॉपुलेशन थी. उस देश की जो कुल जनसंख्या है, अब मैं ये सोच रहा था कि सूरत की जनसंख्या विच मस्ट बी अराउंड 80-85 lakhs, तो ये 85 lakhs का 55-60 lakhs. हाँ हाँ हाँ. और वो देश मालदीव्स की जिसकी जनसंख्या ही 5 या 6 लाख है, वो छोटा सा देश की जहां पे कू होता है, और उस कू को एवर्ट करने के लिए द देन प्राइम मिनिस्टर सेंड्स अ स्मॉल बोट विद मार्कोस, एंड वो उस कू को रिवर्ट करके वापस आ जाते हैं. Audacity of representatives of Maldives, they had one statement, yes, we also have some issues with India. And all the Indians were all zapped as to what are they saying? What is it that Maldives, such a tiny, miny nation with a population of 5-6 lakhs, has with India? And we all looked at the representative from Maldives, and he very meekly said, well, we have our claim on Lakshadweep. कैन यू बिलीव दैट, कैन यू बिलीव दैट कि वो एक इतना छोटा सा देश कि जिसकी पूरी जनसंख्या ही उस समय की बात बता रहा हूं मैं, 5 या 6 लाख थी, अब शायद बढ़ के कुछ 7-8 लाख होगी. एंड दे हैड ऑडेसिटी. और जब मैं श्रीलंका में 2 साल रहा, श्रीलंका में मैंने काम किया, और ये बात मैं तब की बता रहा हूँ 2006-07 की. एलटीटी उस समय लुप्त नहीं हुआ था, और तब मैंने ये स्टेटमेंट मीडिया में भी कही है, बार बार कही है, दैट डेंजर फॉर श्रीलंका इज नॉट एलटीटी. एलटीटी भविष्य में जो कि मूलतः तमिल भाषी लोग इसमें हैं, वो शायद से आपके साथ एसिमिलेट हो जाएंगे. द रियल प्रॉब्लम इन श्रीलंका वुड बी द मुस्लिम माइनॉरिटी दैट यू हैव इन लंका, and the kind of support that they are getting from absolutely Wahhabi Maldives. और ये हम आने वाले टाइम में इसको हमने देखा, हमने विटनेस किया कि मालदीव्स जैसा छोटा सा देश जिसपे आईसिस का भी इतना बड़ा प्रभाव था, और एज यू नो उनका एक बहुत ही ज्यादा एक वहाबी माइंडसेट है. तो कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूं कि ये सार्क उस समय का सार्क था. और उसके बाद भारत की जो डिप्लोमेसी रही वो ये रही कि वी हैड क्वाड. तो क्वाड में हमने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ये 4 देश मिले हैं. तो पूरा जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन पे हमने अपना एक सिक्का जमाया है. उसके साथ साथ हम जिसको बोलते हैं IISS अलायंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग अलायंस है हिमांशु भाई. IISS अलायंस, जिसमें इंडिया और इजराइल आते हैं, और साथ में IIW अलायंस, तो जिसमें इंडिया और इजराइल आते हैं, और यूएई और यूएसए आते हैं. तो अब तक या I2U2, यस I2U2, तो I2U2 का अलायंस हुआ है. एक तरफ क्वाड अलायंस हुआ है. तो भारत अलग अलग फ्रंट पे अपने अलायंस बढ़ाता जा रहा है. आज जब भी हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी और उसके आज जो पैसिफिक ओशन के जो देश हैं वहां पे भी एक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं. तो हम एक ऐसा राष्ट्र बने हैं जो बाकी सारे राष्ट्रों को साथ में लेके चलता है. आज ऐसी स्थिति है कि फ्रांस के जो लीडर हैं वो भारत के लीडर, या मैक्रो इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रधानमंत्री मोदी, एंड दिस फ्रेंडशिप इज नॉट विद प्रधानमंत्री मोदी, इट ट्रांसलेट्स, इट काइंड ऑफ वो एक्सट्रापोलेट होती है टुवर्ड्स 145 करोड़, जो हमारे 1.45 बिलियन देश के जो नागरिक हैं उस पर ये ट्रांसलेट होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी में कि एक पर्सनल लेवल पे जाकर आप किस तरह से देश को प्रभावित करते हैं, देश की डिप्लोमेसी को प्रभावित करते हैं. सार्क रिडंडेंट होना आवश्यक था. हम सार्क रीजन जो है, साउथ एशियन रीजन, जिसको मैं साउथ एशियन नहीं कहना चाहता, मैं इस साउथ एशियन शब्द के ही खिलाफ हूं. इसको आप भारत कॉन्टिनेंट कह लीजिए, भारत सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए, या फिर इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए. ये
कुछ वर्षों पूर्व इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही कहलाया जाता था। बट फिर वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने ये आपत्ति जताई कि क्यों इसमें इंडिया का नाम जो है, भारत का नाम जो है, वो इतना ऊपर के आना चाहिए, एंड दे चेंज्ड द टर्मिनोलॉजी टू साउथ एशिया। मैं इसको भारत भूखंड ही सिद्धार्थ जी, कहूंगा। तो भारत, हम मूल बात पे आएंगे आज के टॉपिक की। जी जी एंड दैट इज जी बिकॉज जी, वी हैव जस्ट 8-9 minutes लेफ्ट फॉर आवर श्योर ब्रॉडकास्ट। यू नो, श्योर। बेसिकली व्हाट आई वांट टू नो इज कि अभी सार्क तो खत्म हो गया, अभी पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेटेड कंट्री है। अगर समझ लो वहां पर विभाजन चालू हो गया, जैसे 71 में बांग्लादेश अलग हुआ था, अभी वहां पर सिविल वॉर जैसी कोई स्थिति आ गई, विभाजन चालू हो गया, और हमारे पास शरणार्थियों का भरमार आनी चालू हो गई। See, that is a distinct possibility. India is very much alert on its borders. But then if you have 5-10 million of refugees coming to you, what can you do as a human rights? You know, in human rights, you cannot deny them. तो क्या स्थिति हो जाएगी? क्या आप देख रहे हो कि पाकिस्तान बिखरेगा? One last question. हाँ, नहीं, पूरी तरह से होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान का विघटन, पाकिस्तान, देखिए, जो चीज नेचुरल प्रिंसिपल्स पे ना बनी हो, आर्टिफिशियली क्रिएट हुई हो, देखिए, जो भी चीज आर्टिफिशियली क्रिएट होती है वो सबके साथ एक एक्सपायरी डेट आती ही आती है। तो पाकिस्तान का बनना इटसेल्फ इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, सो इट हैज कम अप विद इट्स एक्सपायरी डेट। और ये हमने 1971 में ही देख लिया था, इसकी शुरुआत हो गई थी। वेरी राइटली सेड कि यस, ये होगा। और इससे मैं समझता हूं भारत के साथ साथ जो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंट है, जो कि ईरान के साथ की बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ की बॉर्डर है, और सबसे ज्यादा चिंतित देश इस समय ईरान भी होगा, क्योंकि यूएस के साथ उसके कुछ संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। और इस परिस्थिति में जो पाकिस्तानी हैं, जो ईरान की तरफ मुख मोड़ना चाहेंगे, वो शायद ज्यादा है। तो भारत को इस बात से मैं समझता हूं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और इस बारे में द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन एंड आर एनएसए अजीत डोवल जी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट। और इसीलिए जो हमारी जो बॉर्डर्स हैं, जो हमारी सीमाएं हैं, वहां पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, बॉर्डर एक्शन फोर्स जो चल रही हैं, वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको सेंसिटाइज करने का काम चल रहा है, उनको एक तरह से एम्पावर करने का भी काम चल रहा है। तो ये सारे काम पिछले कई समय से चल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा एक दौर आएगा कि जहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और होर्ड्स एंड होर्ड्स में रेफ्यूजीज आ रहे हैं। और अगर वो होता भी है तो उसके आई एम श्योर कुछ अरेंजमेंट्स हुए हैं। पहले जैसी परिस्थिति जैसे कि बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पे हुई थी, जब चकमा रेफ्यूजीज का एक बहुत बड़ा दस्ता भारत में घुस गया था, ये परिस्थिति अब शायद निर्माण नहीं होगी। Okay, बट यस, viewers, मैं आपको मैं बताता चलूं. Let me tell you something. The information which I have is Indian Army and Indian diplomats have made a plan to absorb about 5 to 10 million refugees if the worst comes to worst. This is what is the information. But then we are not going to disturb Pakistan in its own internal problems. That is where we have drawn a Lakshman Rekha. Lakshman Rekha वहां बनाई गई है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम उनको इग्नोर करेंगे. And that is where one minute for you, sir. How do you view it? कि हम इग्नोर करेंगे और फिर भी वो टूट जाएंगे. नहीं, कुछ बातें होती हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में ना आए, और पब्लिक डोमेन में यही बात आए कि हम इग्नोर कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, जो मैंने अनुभव किया पाकिस्तान में रहकर 2 बार, और जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी के साथ जितना मेरा एक इन्वॉल्वमेंट रहा है, मैं जानता हूं और ये मानता हूं कि भारत इस सिचुएशन में इग्नोर तो नहीं ही कर सकता है। रादर अभी एनएसए अजीत डोवल जी और उनकी जो टीम है वो ओवर टाइम काम कर रही होगी। बट हाँ, पब्लिक डोमेन में और लोगों के लिए यही समझना और जानना आवश्यक है कि हम चुपचाप बैठे हैं और हम इस परिस्थिति को चुपचाप देख रहे हैं। यही चीज पब्लिक को भी लगनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके दोस्तों, नमस्कार. आज के संस्करण में सिर्फ इतना ही, मगर आप याद रखिए हम फिर से मिलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे पाकिस्तान की और भारत की विदेश नीति के बारे में. थैंक यू फॉर नाउ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी. आपसे फिर मुलाकात होगी. विल टॉक अगेन समडे. थैंक यू वेरी मच.
Namaste. Namaste. Namaste.